حیدرآباد کے دھرنا چوک پر آٹو یونین کی جانب سے زبردست احتجاج کرتے ہوئے حکومت سے ان کے مسائل حل کرنے اور ان کی مانگوں کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ آٹو یونین کی جانب سے جمعرات کو حیدرآباد کے دھرنا چوک پر زبردست احتجاجی مظاہرہ ہوا اور دھرنا بھی منظم کیا گیا۔ مظاہرین نے GHMC حدود میں اضلاع کے آٹوز کے داخلے پر پابندی عائد کرنے، ڈرائیورز کے لیے انشورنس اسکیم متعارف کروانے اور میٹر کرایہ میں اضافہ کرنے سمیت متعدد مطالبات اٹھائے اور حکومت سے ان کے مطالبات کو پورا کرنے کی مانگ کی۔ GHMC میئر گدوال وجے لکشمی نے خیرتآباد زونل آفس میں منعقد بدکمہ تقریبات میں شرکت کی۔ خیرتآباد زونل آفس میں بدکمہ کی تقریبات منعقد ہوئی۔ GHMC کی میئر گدوال وجے لکشمی، محکمہ GHMC کے افسران، ملازمین، آشا ورکرز، RPs اور BLOs نے بدکمہ کی تقریبات میں حصہ لیا۔ اینٹی کرپشن بیورو کے عہدیداروں نے جنگاؤں میں بدعنوانی کے معاملے میں TGEWIDC کے سائٹ انجینئر کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ ذرائع نے بتایا کہ تلنگانہ اسٹیٹ ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن جنگاؤں ضلع کے سائٹ انجینئر سمالا رمیش کو اینٹی کرپشن بیورو کے عہدیداروں نے 18,000 روپے کا مطالبہ کرنے اور 8,000 روپے بطور رشوت قبول کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ بتایا جاتا ہے کہ شکایت کنندہ نے PMSHRI یعنی پردھان منتری اسکولز فار رائزنگ انڈیا گرانٹ اسکیم کے تحت کاموں کی انجام دہی اور حتمی بل پر کارروائی کو آگے بڑھانے کے لیے رشوت کا مطالبہ کیا تھا۔ حکام نے سمالا رمیش کو گرفتار کر لیا ہے۔ ACP نے کہا ہے کہ کسی بھی سرکاری ملازم کی جانب سے رشوت طلب کیے جانے پر ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی اور متاثرہ افراد اینٹی کرپشن بیورو تلنگانہ کے ٹول فری نمبر 1064 پر اپنی شکایت درج کروا سکتے ہیں۔ آنگن واڑی اساتذہ اور ان کے معاونین نے سکریٹریٹ کے پاس احتجاج کرتے ہوئے تنخواہوں میں اضافہ کرنے اور انتخابی وعدوں کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا۔ آنگن واڑی ٹیچرز اینڈ ہیلپرز یونین کے زیر اہتمام جمعرات کو ریاست بھر سے خواتین کی بڑی تعداد سکریٹریٹ کا محاصرہ کرنے پہنچی۔ آنگن واڑی کے اساتذہ اور ان کے معاونین نے احتجاج درج کروایا، حکومت کے خلاف نعرے لگائے اور حکومت سے ان سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے، ان کی تنخواہوں میں اضافہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ دریں اثنا احتجاج کرنے والی اساتذہ کو پولیس نے حراست میں لے کر RTC بسوں میں پولیس اسٹیشن منتقل کیا۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے RJD سربراہ لالو پرساد یادو اور ان کے بیٹے تیجسوی یادو پر اسمبلی انتخابات سے قبل مجلس کی جانب سے اتحاد کی درخواستوں کو مسترد کرنے پر نکتہ چینی کی ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی بہار کا دورہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی 4 روزہ سیمانچل نیائے یاترا کے ایک حصے کے طور پر کشن گنج ضلع میں ایک ریلی سے خطاب کیا۔ صدر مجلس نے اس موقع پر RJD سربراہ لالو پرساد یادو اور ان کے بیٹے تیجسوی یادو پر بہار اسمبلی انتخابات سے قبل مجلس کی جانب سے اتحاد کی درخواستوں کا کوئی جواب نہ دینے کا الزام عائد کیا۔ بیرسٹر اویسی نے بتایا کہ مجلس نے صرف مساوی سلوک کرنے پر اصرار کیا تھا، کسی وزارتی عہدے کی خواہش ظاہر نہیں کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ بہار کے صدر اختر الایمان نے لالو پرساد یادو اور تیجسوی یادو کو 3 مرتبہ خط لکھ کر انڈیا بلاک میں شامل ہونے کی خواہش کا اظہار کیا۔ مجلس کی جانب سے 6 نشستوں کا مطالبہ کیا گیا تھا اور یہ بھی واضح کیا گیا تھا کہ مجلس کو کسی بھی وزارتی عہدے میں دلچسپی نہیں ہے۔ مجلس صرف BJP اور RSS کے خلاف لڑائی میں حصہ لینا چاہتی ہے اور غلاموں کی طرح نہیں بلکہ مساوی سلوک چاہتی ہے۔ کہ اپنی سیاسی قیادت کو مضبوط کریے، ہم غیروں کی چوکھٹ پر جا کر بھیک نہیں مانگیں گے۔ آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آپ اپنے ووٹ سے دوبارہ انشاءاللہ تعالی
कोचा दामन से मजलिस उम्मीदवार को कामयाब कर सकते हैं और मुझे यकीन है कि जरूर कामयाबी मिलेगी। अब नहीं मालूम क्या होने वाला है राजद में, मगर मजलिस ने अपनी नेक नियति का इजहार किया। हमने अख्तरुल ईमान साहब ने लालू प्रसाद यादव साहब को खत लिखा, उसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझे नहीं मिला। मेरे भाई, अगर घर में बाप जिंदा होता है तो बाप की मौजूदगी में जब बड़ों के सामने कोई बात रखी जाती है तो छोटों को हक नहीं पहुंचता कि वो कहे कि आपने अब्बा को कहा, मुझे नहीं कहा। मैं उस घर से आता हूं जहां पर हमने बड़ी हमारे वालिद मरहूम की जिंदगी में मैंने बहुत ही कम अपने वालिद से आंख में आंख मिलाकर बात किया होगा। हमारे लिए हमारी वालिद की बात उर्फ आखिर होती थी, मगर फिर ठीक है, हर घर में अलग माहौल होता है। भारत राष्ट्रीय समिति के रहनुमा हरीश राव ने अपने मसाइल के हल के लिए सेक्रेटरीट आने वाले आंगनवाड़ी असातिज़ा की गिरफ्तारियों की सख्त मजम्मत की है। आंगनवाड़ी के असातिज़ा ने असम्बली इंतखाबात के दौरान किए गए वादों पर फौरन अमल दरामद और हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई प्री प्राइमरी स्कूल पॉलिसी को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया। इन्हीं मुतालबात को लेकर आज वो डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। साबिक वजीर हरीश राव ने आंगनवाड़ी के असातिज़ा की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि वो हुकूमत की जानिब से पुलिस के जरिए आंगनवाड़ी असातिज़ा के खिलाफ की गई कार्रवाई की सख्त मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि ये इंतहाई शर्मनाक बात है कि खवातीन को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। उन्होंने सवाल किया है कि क्या इंदिरा मां की हुक्मरानी में खवातीन मुलाजिमीन का कोई एहतराम, कोई पहचान नहीं है। हरीश राव ने याद दिलाया कि साबिक वज़ीर आला KCR ने आंगनवाड़ी असातिज़ा के ओहदों को अपग्रेड किया। साल 2014 में उन्हें सिर्फ 4,200 रुपये तनख्वाह दी जाती थी, लेकिन BRS की हुकूमत ने आंगनवाड़ी असातिज़ा की तनख्वाहों को बढ़ाया और उनसे किए गए वादों को भी पूरा किया। हरीश राव ने नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने इख्तिदार में आने से पहले आंगनवाड़ी के असातिज़ा से कई वादे किए थे, लेकिन 22 माह गुजरने के बावजूद भी वादे पूरे नहीं किए जा सके। उन्होंने मुतालबा किया है कि गिरफ्तार आंगनवाड़ी असातिज़ा को फौरी तौर पर रिहा किया जाए और इंतखाबी मंशूर में उनसे किए गए वादों को पूरा किया जाए। जहदकारों के एक नुमाइंदा वफ्द ने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी से मुलाकात करते हुए वक्फ अमलाक के तहफ़्फ़ुज़, आइमा व मौज़नीन के मुशाहिरों व दीगर उमूर पर बातचीत की। मोहतरमा लुबना सरवत, डॉक्टर अनवर खान, जाहिद कादरी, नईमुल्लाह शरीफ और शकील अहमद पर मुश्तमिल एक वफ्द ने हज हाउस नामपली में वाक़े वक्फ बोर्ड के दफ्तर पहुंचकर तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान कोड़ंगल के कब्रिस्तान व दीगर मुकामात को तोसी के नाम पर ज़मीन बोस करने के मामले पर बातचीत की गई। आइमा व मौज़नीन के मुशायरों की बर वक्त अदायगी और वक्फ अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने से मुताल्लिक़ उमूर पर एक याददाश्त भी पेश की गई। लुबना सरवत ने हालिया अरसे में वक्फ से मुताल्लिक़ उमूर की प्रेस ब्रीफिंग और फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट से भी चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड को वाकिफ़ करवाया। चेयरमैन ने दिलचस्पी के साथ तमाम उमूर की समाअत की और भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। दे दिया रिपोर्ट, तो इसमें रिपोर्ट में केस 1, 2, 3, 4 यहाँ पर है, इंडेक्स देखिए। तो इसमें सीधा उन्होंने निशाना लगा रहा हूँ, इनके ऊपर FIR होना चाहिए बोल रहे। तो इसमें से ये रिपोर्ट में से खुली तरीके से जो BRS है, जो MIM है और जो BJP है, इस रिपोर्ट पे 8 साल BJP खामोश क्यों बैठ के अब पीछे से 2025 की एक्ट क्यों ले, इनको आज तक वो बात क्यों नहीं करी जो उनका खुद का मेंबर यहाँ लिखा, यहाँ आके पूरी तहकीकात करके। तो इतनी डिटेल वाली रिपोर्ट छुपा के क्यों रखे, इस वजह से रखे बोल के रिपोर्ट पढ़ने के बाद मेरे को मालूम हुआ कि मेरी RTB नहीं दी। तो मैं ये बोल रही कि आप भी, क्योंकि रूलिंग पार्टी कांग्रेस के अपन लोग सब वही है, इसीलिए मैं फर्ज से आपके पास आई फर्स्ट, और मिनिस्टर प्रेस को नहीं मिला पॉइंट। तो कि इसमें से क्लियर कट किन चीजों की नेक्सस मालूम हो रही, BJP और KCR और MIM तीनों की जो
मिली है उसमें इसमें से पता चल रहा है ये 6 केसेस में से। इस पे हम लोगों को फौरन एक्शन होना। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने धरना चौक पहुंचकर एहतजाजी वकला के साथ इजहार यकजहती किया। तेलंगाना जूनियर एडवोकेट एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम आज धरना चौक पर एहतजाज किया गया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन धरना चौक पहुंचे और एहतजाजी वकला के साथ यकजहती का इजहार किया। आपको बता दें कि वकला एडवोकेट कॉलोनी का क़याम, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के निफाज, जूनियर वकालत के लिए वजीफे की फराहमी, हेल्थ कार्ड स्कीम में वालिदैन की शमूलियत, 41A CRPC में तरमीम और बीमे की रकम को 2 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक बढ़ाने का मुतालबा कर रहे हैं। एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने कहा कि वकला के मुतालबात हकीकी हैं और वो उनकी हिमायत करते हैं। उनका कहना था कि वकला ख़ास तौर पर जूनियर्स की फलाह व बहबूद, तहफ़्फ़ुज़ और वक़ार को यकीनी बनाने के लिए जो मुतालबात किए जा रहे हैं वो जायज़ हैं और अहम भी हैं। निज़ामाबाद ज़िले के डिचपल्ली मंडल में एक बस लॉरी से टकरा गई, 10 मुसाफिर जख्मी हो गए। ज़राए ने बताया जुमेरात की सुबह निज़ामाबाद ज़िले के डिचपल्ली मंडल के सुद्दापल्ली में एक बस लॉरी से टकरा गई। बताया जाता है कि बस का ड्राइवर कंट्रोल खो बैठा और बस डिवाइडर के ऊपर से गुजरकर एक लॉरी से टकरा गई। इस हादसे में बस में सवार 10 मुसाफिर जख्मी हुए। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और इमदादी कार्रवाइयां अंजाम दी गई। जख्मियों को फौरी तौर पर निज़ामाबाद के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि हादसे के वक्त बस में 27 मुसाफिर सवार थे। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद की मुदाखलत के बाद किम्स अस्पताल कोंडापुर के जिम्मेदारान ने बकाया रकम की अदायगी के बगैर ही मोहम्मद शाहजेब की मैयत उनके घर वालों को सौंप दी। तफसीलात के मुताबिक ज़हीराबाद के रहने वाले 18 माह के मोहम्मद शाहजेब को किम्स अस्पताल कोंडापुर में शरीक करवाया गया था। 10 दिनों तक अस्पताल में ज़ेर इलाज रहने के बाद शाहजेब का इंतकाल हो गया। किम्स अस्पताल ने 32 लाख रुपये बतौर अखराजात अदा करने को कहा। बताया जाता है कि मुतवफ़ी के वालिदैन ने 21 लाख रुपये अदा किए और फिर 3 लाख रुपये इंश्योरेंस के ज़रिए अदा किए गए। ताहम अस्पताल के ज़िम्मेदारान ने माबाकी 9 लाख रुपये अदा करने का मुतालबा किया और माबाकी रकम की अदायगी पर ही मैयत सौंपने की बात कही। मुतवफ़ी के वालिदैन और रिश्तेदारों ने मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद से राब्ता किया और उनकी मदद मांगी। अमजदुल्ला खान खालिद ने इस मामले को चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी और वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा के इल्म में लाया। उन्होंने मुतादिद ट्वीट किए, जिसके बाद अस्पताल इंतज़ामिया ने नाश को बगैर रकम की अदायगी के ही उनके वालिदैन के हवाले कर दिया। मुतवफ़ी मोहम्मद शाहजेब के अफराद ख़ानदान ने बर वक्त मदद करने पर अमजदुल्ला खान खालिद से इज़हार तशक्कुर किया। हिंदुस्तान ने इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का कामयाब तजुर्बा किया। दिफाई शोबे में हिंदुस्तान ने एक बड़ा कदम उठाते हुए इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का कामयाब तजुर्बा किया। इस तजुर्बे की सबसे ख़ास बात यह रही कि मिसाइल को पहली मरतबा रेल पर मबनी मोबाइल कैनिस्टर लॉन्चर से दागा गया। ये एक तारीखी कामयाबी है जिसने हिंदुस्तान को उन चुनिंदा ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर दिया है जिनके पास चलती रेल से मिसाइल दागने की तकनीक है। इस मिसाइल को स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड के लिए तैयार किया गया है। आपको बता दें कि अग्नि प्राइम अग्नि सीरीज की सबसे जदीद मिसाइल है। ये इंटरमीडिएट रेंज यानी दरमियानी दूरी वाली है जो 2000 किलोमीटर तक निशाना लगा सकती है। इसमें कई एडवांस्ड फीचर्स भी हैं। ये मिसाइल ऐन मुताबिक निशाना लगाने की अहल है। जदीद नेविगेशन सिस्टम से दुश्मन के ठिकाने को सीधे टारगेट कर सकती है और इसकी खासियत ये है कि ये तेज़ रिएक्शन और छोटे वक्त में लॉन्च हो सकती है।
सऊदी अरब की शाही अदालत ने नए मुफ्ती आजम की तकर्रुरी का ऐलान किया। शेख डॉक्टर सालेह बिन हमीद सऊदी अरब के मुफ्ती आजम और हरमैन शरीफैन के मुतवल्ली और सीनियर उलमा कौंसिल के सरबराह मुकर्रर किए गए। साबिक मुफ्ती आजम शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला अल शेख के इंतकाल के बाद सऊदी अरब की शाही अदालत ने नए मुफ्ती आजम की तकर्रुरी का ऐलान किया है। शेख डॉक्टर सालेह बिन हमीद सऊदी अरब के नए मुफ्ती आजम होंगे। उन्हें हरमैन शरीफैन के मुतवल्ली और सीनियर उलमा कौंसिल का सरबराह भी मुकर्रर किया गया है। शेख डॉक्टर सालेह बिन हमीद ने जामा उम्मुल खुरा से PhD की डिग्री हासिल की है। सन 1984 से वो काबे के इमाम के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं और कई बार खुतबे हज भी दे चुके हैं। इतना ही नहीं, वो मजलिस शूरा के सरबराह, आला अदालती कौंसिल के सदर और शाही दीवान में मुशीर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने फहरिस्त राय दहिंदगान के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए ई-वेरिफिकेशन शुरू किया है। इलेक्शन कमीशन ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि वोटर लिस्ट से नामों को हटाने के ज़ाब्ते का गलत इस्तेमाल न किया जा सके, ई-वेरिफिकेशन का तरीक़ेकार शुरू किया है। जो लोग वोटर लिस्ट से नाम हटाने के ख्वाहिशमंद हैं या फिर वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने पर एतराज़ करते हैं, उन्हें उनके रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन पर वन टाइम पासवर्ड मिलेगा। हुकाम ने कहा कि ऐसे भी मामलात पेश आ सकते हैं जहां कोई शख्स ऑनलाइन एतराज़ करे और किसी और का मोबाइल फ़ोन नंबर फराहम करे। ई-वेरिफिकेशन के ज़रिए इस तरह के गलत कामों को रोकने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि ये फीचर एक हफ्ते कबल शुरू किया गया है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से ई-वेरिफिकेशन का अमल शुरू करने पर इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने उनकी जानिब से इस मामले को उठाने के बाद ही वोट चोरी पर ताला लगाया है। सोशल मीडिया पर सवाल करने वालों के खिलाफ रौडी शीट खोलने की तैयारी रेवंत रेड्डी हुकूमत कर रही है। डीजीपी ने तमाम पुलिस स्टेशनों को हिदायत दी है कि वो सोशल मीडिया पर साइबर जराइम करने वालों के खिलाफ रौडी शीट्स, हिस्ट्री शीट्स और मुश्तबा अफराद की सस्पेक्ट शीट खोलने की तैयारी करें। हुकूमत की जानिब से ऐसे साइबर जराइम को कंट्रोल करने के सिलसिले में ये इक़दाम किया जा रहा है जिससे अवाम को मुश्किलात का सामना है, जबकि असल मकसद सोशल मीडिया है जो हुकूमत की नाकामियों को उजागर करने और गलतियों पर सवाल उठाने में अहम रोल अदा कर रहा है। मदद की ख्वाहिश करते हुए पुलिस स्टेशन से रुजू होने वाली एक खातून को जिनसी ज़्यादती का पुलिस मुलाजिमीन ने निशाना बनाया। ये वाक़या चित्तूर ज़िले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक इस खातून ने शौहर की मुसलसल हरासानी पर पलमा नेहरू पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपने शौहर की शिकायत की। खातून ने बताया कि होमगार्ड ने इसका नंबर लेकर उसे ज़हनी तौर पर हरासा किया। हरासानी बर्दाश्त न करने के बाद वो बंगारू पालम पुलिस स्टेशन में तैनात एक कांस्टेबल से रुजू हुई, लेकिन इस कांस्टेबल ने भी इसके साथ जिनसी ज़्यादती की। इस खातून की शिकायत पर डीएसपी ने बताया कि दोनों मुलजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। కొంచెం మాట ఎన్న తెరలే ఫినిష్ లో అందరూ స్టడీ అందరూ స్టడీ సార్ ఓకే చిత్తూరులో ఈరోజు సబ్రీ అనే ఒక మహిళ, ఒక కానిస్టేబుల్ ఉమామహేశ్వర్ ఇంకో వ్యక్తి వల్ల తనకు అన్యాయం జరిగిందని, తన మీద మందభంగం జరిగిందని పోలీస్ స్టేషన్ వెళ్తే ఫిర్యాదు చేసే పట్టించుకోలేదని చెప్పేసి ఆమె ప్రెస్ మీట్ జరిగింది. ఒరిజినల్గా నిజానికి ఆమె ఇచ్చిన కంప్లైంట్ పేరుకు మార్నింగ్ ఎఫ్ఐఆర్ అయ్యింది. ఆమె పైన జరిగిన ఆమె ఇచ్చిన కంప్లైంట్ పేరుకు, ఆమె వాదమూలకంగా ఇచ్చిన కంప్లైంట్ పేరుకు నిన్న మార్నింగ్ ఎఫ్ఐఆర్ అయిపోయింది. ఎఫ్ఐఆర్ అయిపోయిన తర్వాత ఆమె ఇంటికి వెళ్ళి ఆ విధంగా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి
ఆమె చెప్పిన దానిపైన ఎఫ్ఐఆర్ అయిపోయింది, సమగ్రమైన విచారణ జరుపుతాము. తప్పు చేసిన వ్యక్తులు ఎవరైనా సరే కఠినంగా శిక్షిస్తాం. అదే డిపార్ట్మెంట్ ప్రైమరీ ఎంక్వైరీ చేసి వాళ్ళపైన మిగిలిన తదుపరి రేపు ఎస్పీ గారికి కూడా రిపోర్ట్ పంపిస్తాము. యాజ్ ఫర్ ఫ్యాక్ట్ దీనిపై ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతుంది. ఎందుకంటే పోలీసులు చెప్పినా కేసు కాలేదు, పోలీసు పనిపైన ఇది అవుతుందని. नौबियाता दुल्हन का उसके माँ बाप ने सरेआम ससुराली रिश्तेदारों के मकान में घुसकर हमला करते हुए अगवा कर दिया। ये वाक़या मिर्चल ज़िले के नरसमपल्ली में पेश आया। नरसमपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले प्रवीण और श्वेता ने 4 माह कबल अपनी पसंद से शादी की थी, जबकि लड़की के माँ बाप इस शादी के खिलाफ थे। आज श्वेता के माँ बाप और रिश्तेदार प्रवीण के घर पहुँचे, जहाँ उन्होंने ससुराली रिश्तेदारों पर हमला करते हुए श्वेता को अपने साथ ले गए। मियापुर के रिहैबिलिटेशन सेंटर में एक 35 साल शख्स के कत्ल की वारदात पेश आई। मकतूल की शिनाख्त संदीप के तौर पर की गई है। पुलिस ने बताया कि साथी अफराद सुलेमान और आदिल ने मुलजिम को कत्ल किया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। शमशाबाद और मलकाजगिरी में धावे के दौरान 234 बोतलें शराब की जब्त की गई। साथ ही गाड़ियों की तलाशी के दौरान 220 एनडीपी बोतलें पाई गई। इस सिलसिले में 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसी दौरान मलकाजगिरी में 14 स्कॉच बोतलें जब्त की गई। एक मुलजिम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने एक नौजवान पर मुबैना 3rd डिग्री तशद्दुद के मामले पर कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर को सिर्फ एक सवाल का जवाब देना होगा। वो बार बार कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान होगी जहां कांग्रेस होगी, लेकिन कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना के अवाम और किसानों के लिए एक अजीब माहौल पैदा कर रही है। अभी तक यूरिया का मुतालबा करने वाले किसानों पर पुलिस ने 4 मरतबा हमला किया। जब वो हड़ताल पर गए तो एक कबायली किसान और उसकी बीवी को उनके घर से पुलिस स्टेशन ले जाकर 3rd डिग्री तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कि कांग्रेस के सर्वश्रेष्ठ नेता हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उनको एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। बार बार कहते रहते हैं कि मोहब्बत का दुकान होगा जहां कहीं भी कांग्रेस की सरकार होगी। और आज कांग्रेस की सरकार यहाँ तेलंगाना में एक अजीबोगरीब माहौल आज पूरे यहाँ जनता को और ख़ास हमारे किसान भाइयों को दिखा रहा है। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि आज अब तक 4 बार पुलिस ने हमला किया यूरिया मांगने वाले किसानों पे। और जब किसान हड़ताल पे बैठे, एक ट्राइबल फार्मर को, एक ट्राइबल किसान लड़के को कल उसको घर से उठा के उसके बीवी को, उसकी मिसेस को गाली देते हुए उनको वहाँ से उठा के फिर पुलिस स्टेशन ले गए। वहाँ पे 3rd डिग्री टॉर्चर किया और वो बच्चा आज चलने के हालत में नहीं है। तो राहुल जी से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या यही है आपकी मोहब्बत की दुकान, जहाँ ना प्रोटेस्ट के लिए कोई जगह है, ना कोई किसान को कंप्लेंट शिकायत तक करने की जगह है? ऐसी हुकूमत जिसको यहाँ की हुकूमत कहती है इंदिरम्मा राज्यम, इंदिरा जी की राज्यम, तो हम याद दिलाना चाहते हैं ये तो सीबीआई ने तेलंगाना की दरख्वास्त पर कालेश्वरम प्रोजेक्ट में मुबैना बेकायदियों की तहकीकात की तैयारी शुरू कर दी है। एनडीएसए विजिलेंस और रिटायर्ड जस्टिस पीसी घोष कमीशन की रिपोर्ट्स में 2023 में मेडीगड्ढा के पानी में महसूर होने के बाद संगीन खामियों की निशानदेही की गई थी। पंजाब में सैलाब मुतासरीन के लिए मजलिस की जानिब से 10 लाख रुपए की इमदाद की गई है। मजलिस के ज़ेर इंतज़ाम मजलिस चैरिटी एजुकेशन एंड रिलीफ ट्रस्ट की जानिब से हालिया पंजाब सैलाब से मुतासर अफराद की मदद के लिए 10 लाख रुपए का अतिया दिया गया है। ये रकम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की हिदायत पर पंजाब के वज़ीर आला के रिलीफ फंड में जमा करवाई गई है, ताकि इसे सैलाब मुतासरा ख़ानदानों की बहाली और ज़रूरी राहत कामों में इस्तेमाल किया जा सके। रियासत भर में आंगनवाड़ी वर्कर्स का चलो सेक्रेटेरिएट एहतजाज किया गया। तमाम अजला के बस स्टैंड पर पुलिस ने तलाशी शुरू की और इन वर्कर्स को हैदराबाद जाने से रोक दिया। गुज़िश्ता चंद दिनों से आंगनवाड़ी वर्कर्स कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इंतखाबात से पहले किए गए वादे पूरा करने के लिए रियासत भर में मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज कर रहे हैं।
ENT हॉस्पिटल में ड्रेनेज लाइन के फटने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बताया जाता है कि गुज़िश्ता 10 दिनों से ये मसला बरकरार है और मरीजों के साथ साथ उनके रिश्तेदारों को सख्त परेशानी का सामना है। BRS के सीनियर लीडर आनंद कुमार गौड़ ने हॉस्पिटल का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि GHMC और मुकामी रुकन असम्बली राजा सिंह की लापरवाही के बायस मरीज मुसलसल मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। जय तेलंगाना। मेरा नाम है आनंद गौड़, BRS लीडर। 15 दिन से ENT हॉस्पिटल में से कच्ची मोरी जा रहा है। ये कच्ची मोरी निजाम दौर से है। ये हनुमान टेकड़ी बुग्गुल कुंटा उधर से पूरा आते हुए है। ENT हॉस्पिटल से बाहर निकल के मूसी में मिलना चाहिए। ये काम है GHMC ऑफिसरों का। GHMC ऑफिसरों को मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप लोग क्या काम कर रहे हैं? कमिश्नर साहब, जोनल कमिश्नर साहब, चीफ इंजीनियर रत्नाकर साहब, सर्कल 14 मैडम डिप्टी इंजीनियर, डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर उमा प्रकाश जी, आप लोगों को पूछना चाह रहा हूँ, आंका नहीं दिख रहे क्या आप लोगों को? ये 15 दिन से वैसे इंडिपेंडेंट सस्पेंड MLA राजा सिंह कहाँ सो गए तुम बोल के मैं BRS पार्टी से बोलना चाह रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ। राकेश जायसवाल कहाँ सो गए? तुमको पब्लिक जिताए सो है, तुम्हारा डिवीजन में आता है। पब्लिक को आज ये तकलीफ हो रहा। BRS गवर्नमेंट में हमारा KTR साहब 15-15 दिन ऐसा रहने नहीं देता था, आज हो गए। खलीज बंगाल में बने कम दबाव का इलाका तेजी से तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की जानिब पेशकदमी कर रहा है, जिसके ज़ेर असर बेशतर अजला में शदीद बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये कम दबाव आज रात या कल सुबह तक तूफ़ान में तब्दील होने का इम्कान है। वज़ीदारों ने कहा कि ये तूफ़ान हफ्ते की शाम शुमाली साहिली इलाकों के करीब दाखिल हो सकता है और इसका असर तेलंगाना पर ज़्यादा होने का खदशा है। कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने शेखपेट MRO के साथ बारिश मुतासरीन में किट्स तकसीम किए। उन्होंने हकीमपेट में जिनसी चौराहा गवर्नमेंट स्कूल के करीब बारिश मुतासरीन से मुलाकात की और इन खानदानों में राशन के किट्स तकसीम किए। लद्दाख के शहर लेह में BJP दफ्तर के बाहर पुरतशद्दुद मुजाहरे किए गए। ये मुजाहरे LAB की कॉल पर हुए, जिसमें मरकजी हुकूमत की जानिब से कई ज़ेर इल्तवा मुतालबात पर नतीजा खेज़ मुज़ाकरात में ताख़ीर पर एहतजाज किया गया। इन मुतालबात में खित्ते को रियासत का दर्जा और छठे शेड्यूल का दर्जा देने का मामला शामिल है। इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब किया। उन्होंने अपने इस अहम खिताब में कहा कि वो गाज़ा में नस्लकशी को रोकने के लिए 20,000 फौजी तैनात करने के लिए तैयार हैं। टोलीचौकी RTO दफ्तर में आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी अफराद का इल्ज़ाम है कि टोलीचौकी RTO दफ्तर में शहरियों को मुश्किलात दफ्तर आने वाले अफराद का कहना है कि उनके काम में ताख़ीर हो रही है और मुलाजमीन व एजेंट्स मर्जी के मुताबिक फ़ीस वसूल कर रहे हैं। नए मुतारफ़शुदा ऑनलाइन निज़ाम आम आवाम के लिए पेचीदा साबित हो रहा है और इस अमल को समझने में दुश्वारी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। अगस्त के महीने में लाइसेंस बुक कराई थी मैं, लर्निंग लाइसेंस। अभी फाइनल टेस्ट के लिए पूछ रही हूँ तो क्या कि डिटेल्स नॉट फाउंड बोल के बता रहा सिस्टम में। RTO ऑफिस को गए तो नेक्स्ट टाइम लगता है, अब आइए जब आइए बोल के बोल रहे हैं। लेकिन इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कौन ले रहे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? अगर रोड पे पुलिस वाले अपने को ठहरा के पूछे लाइसेंस कहाँ है आपके, बोले तो एक्सेप्ट करते ट्रैफिक पुलिस वाले, चालन तो डाल रहे हैं ना बराबर हमको। कब तक ऐसे ही चलेगा? कब होगा ये काम? 1 मंथ 2 मंथ्स लेट हो जा रहा हर काम आप लोग की तरफ से। क्या कर रहे गवर्नमेंट वाले? RTO ऑफिस वाले कुछ नहीं कर रहे। टोली चौकी RTO ऑफिस एजेंट तो एक्स्ट्रा पैसे पे करो बोल रहे। हम एक्स्ट्रा पैसे पे करे भी तो वर्क नहीं हो रहा वहाँ पर बराबर प्रॉपरली। नो प्रॉब्लम, पैसे गए तो गए, लेकिन वर्क टाइम पे होना ना, वो भी नहीं दे रहे हमको। रिजल्ट नहीं मिल रहा वहाँ पर। कौन है इसका रिस्पॉन्सिबल? अंदर RTO ऑफिस वाले भी एक्स्ट्रा
पैसे ले रहे बोल के बोल रहे, एजेंट भी बोल रहे नो प्रॉब्लम, अगर हम पैसे दे भी दिए तो, लेकिन वो लोग कुछ भी क्लियरिफाई नहीं दे रहे। एक टाइम बोलते सो एक लिमिटेड टाइम नहीं दे रहे हम लोगों को, ये डेट तक आपका काम हो जाएगा बोल के। एक्स्ट्रा मनी भी जा रहा, अंदर एम्प्लॉयज भी ले रहे थे एजेंटों के थ्रू। आखिर कौन है इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी? हमको रिजल्ट होना, मनी गया प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिजल्ट होना। सर की आरटीओ ऑफिस में एजेंट्स एंड एम्प्लॉयज टू मच ले रहे पैसे, कोई लिमिट ही नहीं रह रही। जरा देखिए इसका भी। हुकूमत से हम रिक्वेस्ट कर रहे जल्द से जल्द हमारी प्रॉब्लम क्लियर कर दिए तो अच्छा रहता। कितना टाइम लगेगा? काफ़ी टाइम हो गया। प्लीज़ इट्स ए रिक्वेस्ट, डू एज सून एज पॉसिबल, वी वांट रिजल्ट्स। बीजेपी के रियासती सदर रामचंद्र राव ने कहा है कि तेलंगाना में बीजेपी को आवाम की जानिब से भरपूर मदद मिल रही है। इसी वजह से हर इंतखाबात में बीजेपी की नशिस्तों में इजाफा हो रहा है। इसी तरक्की को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सब पर है। बीजेपी में ओहदे का मतलब है कि जिम्मेदार कारकुन को मिलने वाला एजाज़, इसीलिए हमें आवाम के लिए मज़ीद जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,